Live from New Delhi, watching DD India Live, India's voice to the world. I'm Abhishek Mahajan, coming up in the next 30 minutes. Prime Minister Modi and Chancellor Merz deepen India-Germany strategic partnership with new MOUs across defence, trade, technology and green energy. India and Germany promote investments in clean energy, tech, defence at India-Germany CEO Forum. Merz calls India partner of choice. Iran says it's not seeking conflict but fully prepared for war, also ready for fair negotiations. On the occasion of National Youth Day on Monday, commemorating the birth anniversary of Swami Vivekanand, Prime Minister Modi participated in the concluding session of Viksit Bharat Young Leaders Dialogue 2026 at Bharat Mandapam in New Delhi. The event took place on Monday, coinciding with National Youth Day, which commemorates the birth anniversary of Swami Vivekanand. Prime Minister, joined by Union Minister Mansukh Mandavia, led the entire gathering in singing the national song Vande Mataram. The heartfelt rendition resonated throughout the hall, with the participants, including thousands of young leaders from across India and international representatives, singing in unison, creating an atmosphere of unity and patriotic fervour. Viksit Bharat Young Leaders Dialogue 2026 witnessed participation from over 50 lakh youth across the country at various levels. The young leaders converging at the national level championship have been selected through a rigorous merit-based three-stage selection process comprising a nationwide digital quiz, an essay challenge and state-level vision presentations. मातरम कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद कराले कोटि कोटि भुजय मृत धर कर वाले अबला के नुमाए तो बोले बाहुबल धारिणी नमामि तारिणी त्रिपुदल वारिणी मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम. Prime Minister Modi also witnessed an exhibition on the sidelines of the event. Alright, so Prime Minister Narendra Modi attended an exhibition on the sidelines of the event. He spoke to the participants, the exhibitors, and they are explaining Prime Minister Narendra Modi. So PM Modi participating in the Viksit Bharat Young Leaders Dialogue concluding session, now in its second edition. It's a national platform designed to facilitate structured engagement between India's youth and national leadership. India and Germany reiterated their commitment to deepen the bilateral partnership and advance global stability and progress during German Chancellor Friedrich Merz's visit to India. Prime Minister Modi and German Chancellor held delegation-level talks in Gandhinagar. The two leaders discussed the entire gamut of bilateral relations between the two nations. The two leaders called for giving further momentum and elevating the strategic partnership.
Following the talks, both sides exchanged and adopted MOUs in the fields of defence and security, trade and economy, critical and emerging technologies, science and technology, renewable energy, green hydrogen, among many others. It will create new opportunities for people and businesses, especially youth. PM Modi described India-Germany relations as strong and expanding across key sectors, including trade, technology and innovation. रक्षा और सुरक्षा में बढ़ता सहयोग हमारे आपसी भरोसे और साझी सोच का प्रतीक है। रक्षा व्यापार से जुड़ी प्राथमिकताओं को सरल बनाने के लिए मैं चांसलर मर्ज का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। हम रक्षा उद्योगों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए एक रोडमैप उस पर भी काम करेंगे, जिससे को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन के नए अवसर खुलेंगे। माइग्रेशन, मोबिलिटी और स्किलिंग बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया है। भारत की टैलेंटेड युवा शक्ति जर्मनी की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। आज ग्लोबल स्किल्स पार्टनरशिप पर जारी जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट इसी भरोसे का प्रतीक है। इससे खास तौर पर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की आवाजाही आसान होगी। India-Germany economic ties are scaling new heights, driving mutual growth and innovation-led progress. PM Narendra Modi and Chancellor Merz also held productive discussions with Indian and German business leaders at the CEO Forum in Ahmedabad. Talks focused on accelerating investments in clean energy and green hydrogen, semiconductors, defense manufacturing, engineering, digitization and finance, flagship areas, powering economic partnership and creating skilled jobs for youth. German Chancellor Merz said India is a desired partner, a partner of choice for Germany. Technological transformation and geopolitical uncertainty affect the way our economies operate and compete. Against this backdrop, the partnership between Germany and India is a strategic asset, economically, politically, and in a global context. I want to share with you three brief observations. First, India's and Germany's trade and investment relationship. India is an important trading partner for Germany, and the trade volume between the EU and India is at a record high. Briefing the media on the German Chancellor's visit to India, Foreign Secretary Vikram Misri said that the visit of Chancellor Friedrich Merz provides an opportunity for both nations to review their rich and important partnership and to set an ambitious agenda for the future. He also said the Chancellor made remarks on the changing world order and reiterated Germany's strong support for India-EU free trade agreement. Chancellor, for instance, remarked on the changing world order, the instability that global order is facing, and why in this context it is ever more important for India and Germany to take their relationship to a new level and to do more, to do much more, in fact, in his words. And in this context, he laid particular emphasis on Germany's very strong support for the early conclusion of the India-EU FTA. As you are all aware, in another fortnight's time, the EC President and the European Council President both will be visiting New Delhi, where we hope to take these discussions forward towards a favorable conclusion. And the Foreign Secretary also emphasized the importance of people-to-people ties and highlighted the growing Indian expatriate community in Germany, including students and people of Indian origin residing there. The people-to-people relationship, the growing Indian expatriate community in Germany, including students. There are today
nearly 60,000 students in Germany and nearly 300,000 people of Indian origin in Germany, a number that has grown quite significantly in just the last half a dozen years or so. And it was heartening to hear Chancellor Merz extend a hearty welcome to this expatriate community, to Indian students, to skilled workers from India. And Prime Minister Modi and German Chancellor Friedrich Merz inaugurated the International Kite Festival 2026 along the west bank of Sabarmati Front in Ahmedabad. As many as 1,071 kite flyers, including 135 from 50 countries, 65 from 13 Indian states and 871 from 16 districts of Gujarat, are participating in the festival. Germany, Russia, Ukraine, Israel, Jordan, Australia, Indonesia are some of the countries participating. DD India's Tanvi Taneja reports. A bright, warm, sunny day in Ahmedabad with brisk breezes to lift the kites aloft along the Sabarmati riverfront. The International Kite Festival, underway from 12th to 14th of January in Gujarat, brings with it the message of peace and harmony. Prime Minister Narendra Modi and German Chancellor Friedrich Merz took a heritage walk at the specially curated Ambavad site for the occasion. 108 Indian musicians presented the Grand Gujarat Symphony for the German Chancellor. The two leaders later also tried a hand at kite flying in the festive atmosphere. Multiple kites of Indian tricolour embedded in one string with Operation Sindoor mast was another highlight of the festival. Kite flyers from 50 countries and 13 Indian states participated in this festival. This kite for this festival. This is my traditional cloth. This for every day. Usually, yes. I love your Prime Minister. Okay. So brilliant and big kite festival. I visit 30 kite festival international. Gujarat kite festival very nice. Many country delegation participating in here. I made Indian flag kite, Delta kite, very nice. It's so nice. Kites flying, people, nice, so nice. We are so happiness to stay here. This year I'm making a Gujarat kite. That Gujarat kite is displayed all over the Gujarat in that Gir jungles, that city side jalis, then Statue of Unity, then play of the kites, then Navratri, then Somnath temple, everything Jhakis in my kites. It's a wonderful feeling, it's a wonderful event, one of the biggest kite festivals in the country. So I would like to request all the viewers that you should get into the kite flying. It's not just for the entertainment, it have a lot of health benefits too. Postural correction, it's a kind of wellness therapy, holistic therapy for your frozen neck or text neck or the cervical problems, eyesight, lack of vitamin D. You get out of your comfortable space in the AC rooms and cabins, come into the ground, get more sunlight. So in the heritage city of Ahmedabad, kite flying during Uttarayan is really rooted in Gujarat's cultural expression. People fly kites on January 14th every year. They transform their shared rooftops into collective spaces of joy. I'm here at the International Kite Festival on the Sabarmati riverfront, where kitists from 50 countries, 13 states are here, and there are about 1,000 plus kites flying in the sky right now. Their enthusiasm is high. The mood is very upbeat. Well, the wind is only catching up for these kites to roar higher in the sky. With camera person Anand Kashyap, this is Tanvi Taneja for DD India. Moving on, India's Minister of Consumer Affairs, Food and Public Distribution and New and Renewable Energy, Prahlad Joshi, attended inter-ministerial dialogue on scaling renewable energy in agri-food systems at the 16th session of ARENA in Abu Dhabi. Minister highlighted how decentralized renewable energy is transforming farmers, strengthening productivity, incomes and climate resilience.
preparation of next phase PM Kusum for the farmers. That also sends a clear forward signal with a stronger focus on the agri-PV. That reinforces the confidence. Over 146 million small holding farmers are there. We are providing this scheme to all of them. I think by this PM Kusum, which is a decentralized scheme, PM Suregar, which is a decentralized scheme, by that itself, when these all together, this scheme comes to end within 2-3 years or 4 years, we are producing nearly about 30-40 gigawatt of the electricity by this scheme itself. Now, US Ambassador to India Sergio Gore arrived in India last week. In his first public address, he conveyed President Donald Trump's best wishes to his friend. All right, we'll come back to this, but we'll go across live now. Prime Minister Narendra Modi will be addressing Viksit Bharat Young Leaders Dialogue 2026 in New Delhi. बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी. Proceeding ahead, we are proud to present the memorable commemorative of our Unity March, Iron Man, जिनके साहस ने बिखरे भारत को एक सूत्र में पिरो दिया. सरदार पटेल जी ने सिर्फ नक्शा नहीं, एक अटूट राष्ट्र विश्वास गढ़ दिया. We have proudly celebrated Sardar 150 with 19 lakh Yuva across the whole nation who participated in 1522 Padyatras, marking the 150th birth anniversary of the Iron Man of India, Sardar Vallabhbhai Patel. To honor his legacy of courage and national unity, we organized a Unity March which took over 2 months and ended in the Kevadia of Gujarat at the Statue of Unity, where more than 4 lakh Yuva covering 182 kilometers displayed their patriotism. महोदय, उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि जिस ओर तरुणाई चलती है, उस ओर ज़माना चलता है. Here we present a compilation of this memorable journey, celebrating the spirit of unity. अब मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से अनुरोध करती हूं कि वे मंच पर पधारें. साथ ही मैं मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स एंड लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डॉक्टर मनसुख मांडविया जी से अनुरोध करती हूं कि वे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ मंच पर पधारें. साथियों, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं मनसुख मांडविया जी का. अब मैं हमारी पदयात्री तथा माय भारत वॉलंटियर लद्दाख से आई डेचिन से अनुरोध करती हूं कि वे माननीय प्रधानमंत्री जी को सरदार 150 बुक कमेमोरेटिव बुक सादर भेंट करें. कृपया जोरदार तालियों से इस पल की गरिमा को बढ़ाते रहें. भारत मंडपम से लेकर पूरे विश्व तक इसकी प्रखर ध्वनि गूंजती रहे. धन्यवाद डेचिन. अब हम विनम्रता पूर्वक युवाओं के सारथी और ऊर्जा के पावर हाउस माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से अनुरोध करते हैं कि वे अपने प्रेरक विचारों से हमारा मार्गदर्शन करें. केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथी, सभी सांसदगण, विकसित भारत यंग लीडर्स चैलेंज के विनर्स, अन्य महानुभाव और देश भर से यहाँ आए मेरे सभी युवा साथी, विदेशों से जो नौजवान आए हैं, उनको भी एक नया अनुभव मिला होगा. आप लोग थक नहीं गए? दो दिन से यही कर रहे हैं तो अब क्या सुन सुन कर थक नहीं जाओगे? वैसे तो बीच में मैंने जितना कहना था कह दिया था.
जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, तब मैं समझता हूं आप में से बहुत सारे युवा ऐसे होंगे जिनका जन्म भी नहीं हुआ होगा। और जब मैंने 2014 में प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, तब आप में से ज्यादातर लोगों को बच्चा कहा जाता होगा। लेकिन पहले मुख्यमंत्री के रूप में और फिर अभी प्रधानमंत्री के रूप में मुझे हमेशा युवा पीढ़ी पर बहुत ज्यादा विश्वास रहा है। आपका सामर्थ्य, आपका टैलेंट, मैं हमेशा आपकी एनर्जी से खुद भी एनर्जी पाता रहा हूं। और आज देखिए, आज आप सभी विकसित भारत के लक्ष्य की बागडोर थामे हुए हैं। साथियों, साल 2047 में जब हमारी आजादी के 100 साल होंगे, वहां तक की यात्रा भारत के लिए भी अहम है और यही वो समय है जो आपके जीवन में भी सबसे महत्वपूर्ण है। यानी बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। आपका सामर्थ्य भारत का सामर्थ्य बनेगा। आपकी सफलता भारत की सफलता को नई ऊंचाइयां जरूर देगी। मैं आप सभी को विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग में सहभागिता के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं इस विषय पर आगे विस्तार से बात जरूर करूंगा, लेकिन पहले बात में आज के विशेष दिन की। साथियों, आप सभी जानते हैं कि आज स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती है। स्वामी विवेकानंद जी के विचार आज भी हर युवा के लिए प्रेरणा है। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? पर्पस ऑफ लाइफ क्या है? कैसे हम नेशन फर्स्ट की भावना के साथ अपना जीवन जिए? हमारे हर प्रयास में समाज का, देश का हित हो, इस दिशा में स्वामी विवेकानंद जी का जीवन हम सभी के लिए बहुत बड़ा मार्गदर्शक है, प्रेरक है। स्वामी विवेकानंद का स्मरण करते हुए हर साल 12 जनवरी को हम राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। और उन्हीं की प्रेरणा आज 12 जनवरी को विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग के लिए चुना गया है। साथियों, मुझे खुशी है कि बहुत ही कम समय में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां देश के विकास की दिशा तय करने में युवाओं की सीधी भागीदारी होती है। करोड़ों नौजवानों का इससे जुड़ना, 50 लाख से अधिक नौजवानों की रजिस्ट्री, 30 लाख से अधिक युवाओं का विकसित भारत चैलेंज में हिस्सा लेना, देश के विकास के लिए अपने विचार शेयर करना,
इतने बड़े स्केल पर युवा शक्ति का एंगेज होना अपने आप में अभूतपूर्व है। दुनिया के अनेक देशों में आमतौर पर थिंक टैंक, ये शब्द बहुत प्रचलित है, थिंक टैंक की चर्चा भी होती है और उस थिंक टैंक का प्रभाव भी बहुत होता है। वे एक प्रकार से ओपिनियन मेकर्स का एक समूह बन जाता है। लेकिन शायद आज जो मैंने प्रेजेंटेशन देखे और जिस प्रकार से चर्निंग होते होते आप लोगों ने यहां तक चीजें लाए हैं, मैं समझता हूं कि ये अपने आप में ये इवेंट इंस्टीट्यूशनलाइज तो हुआ है, एक अपने आप में दुनिया में अनोखी थिंक टैंक के रूप में उसने अपनी जगह बना ली। एक निश्चित विषय को लेकर, निश्चित लक्ष्य को लेकर के लाखों लोगों का मंथन होना, इससे बड़ा थिंकिंग क्या हो सकता है। और मुझे लगता है कि इसके साथ थिंक टैंक शब्द बैठता नहीं है, क्योंकि टैंक शब्द इसलिए आया होगा छोटा सा होता है, ये तो विशाल है, सागर से भी विशाल है और समय से भी आगे है और विचारों में समंदर से भी ज्यादा गहरा है। और इसलिए थिंक टैंक शब्द टैंक वाले शब्द से भी सीमित नहीं किया जा सकता, ऐसा इसका अनुभव है। और जिन विषयों को आज आपने चर्चा में लिया है, जैसे खासतौर पर विमेन लेड डेवलपमेंट और यूथ पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेसी, ऐसे गंभीर विषयों पर जिस प्रकार से विचार आपने रखे हैं, ये प्रशंसनीय है। थोड़ी देर पहले आपने यहां जो प्रेजेंटेशन रखे, अलग अलग थीम्स को लेकर प्रभावी बात रखी, ये दिखाता है कि हमारी अमृत पीढ़ी विकसित भारत के निर्माण के लिए कितनी संकल्पित है। इससे ये भी स्पष्ट होता है कि भारत में जैन जी का मिजाज क्या है। भारत का जैन जी कितनी क्रिएटिविटी से भरा हुआ है। मैं आप सभी युवा साथियों को, मेरा युवा भारत संगठन से जुड़े सभी नौजवानों को इस आयोजन के लिए और इसकी सफलता के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैंने जब अभी आपसे बातें शुरू की तो 2014 का जिक्र किया था। तब यहां बैठे ज्यादातर युवा 8-10 साल के ही रहे होंगे, अखबार पढ़ने की उनकी आदत भी नहीं डेवलप हुई होगी। आपने पॉलिसी पैरालिसिस का वो पुराना दौर नहीं देखा, जब उस समय की सरकार की इसलिए आलोचना होती थी कि वो समय पर फैसले नहीं लेती, और जो फैसले होते भी थे वो जमीन पर ठीक से लागू नहीं होते थे। नियम कायदे ऐसे थे जिससे हमारा नौजवान कुछ नया करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। देश का युवा परेशान था कि इतनी बंदिशों में वो जाए तो जाए कहां। साथियों, ये हालत ये थी कि अगर किसी एग्जाम के लिए, जॉब के लिए अप्लाई करना होता था तो सर्टिफिकेट अटेस्ट कराने के लिए अफसरों और नेताओं के साइन लेने में ही दम निकल जाता था। फिर फीस का डिमांड ड्राफ्ट बनाने के लिए
बैंक और पोस्ट ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते थे। अपना कोई बिजनेस शुरू करना होता था तो बैंक कुछ हजार रुपए लाने के लिए 100 गारंटी मांगते थे। आज ये बातें बहुत असामान्य लगती हैं, लेकिन एक दशक पहले तक यही सब कुछ चलता था। साथियों, आपने यहां स्टार्टअप्स को लेकर प्रेजेंटेशन दिया। मैं आपको स्टार्टअप इकोसिस्टम का ही उदाहरण देता हूं कि इसमें जो परिवर्तन होता है वो कैसे हुआ है। दुनिया में 50-60 साल पहले स्टार्टअप कल्चर शुरू हुआ, धीरे धीरे वो मेगा कॉरपोरेशन के युग में बदल गया। लेकिन इस पूरी जर्नी के दौरान भारत में स्टार्टअप्स के बारे में बहुत कम चर्चा होती थी। साल 2014 तक तो देश में 500 से भी कम रजिस्टर्ड स्टार्टअप हुआ करते थे। स्टार्टअप कल्चर के अभाव में हर क्षेत्र में सरकार का ही दखल हावी रहा। हमारे युवा टैलेंट, उसका सामर्थ्य, उसे अपने पूरा करने का मौका नहीं मिला। साथियों, मुझे अपने देश के युवाओं पर भरोसा है, आपके सामर्थ्य पर भरोसा है, इसलिए हमने एक अलग राह चुनी। हमने युवाओं को ध्यान में रखते हुए एक के बाद एक नए स्कीम्स बनाई। यही से स्टार्टअप रिवॉल्यूशन ने भारत में असली गति पकड़ी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, फंड्स ऑफ फंड्स, टैक्स और कंप्लायंस सिंप्लीफिकेशन, ऐसे अनेक इनिशिएटिव लिए गए। ऐसे सेक्टर जहां पहले सिर्फ सरकार की सब कुछ थी, सब कुछ उसी की चलती थी, उनको युवा इनोवेशन, युवा एंटरप्राइज के लिए ओपन किया गया। इसका जो प्रभाव हुआ वो भी एक अलग ही सक्सेस स्टोरी बन चुका है। साथियों, आप स्पेस सेक्टर को ही लीजिए। 5-6 साल पहले तक स्पेस सेक्टर को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी सिर्फ इसरो पर थी। हमने स्पेस को प्राइवेट एंटरप्राइज के लिए ओपन किया, इससे जुड़ी व्यवस्थाएं बनाई, संस्थाएं तैयार की और आज स्पेस सेक्टर में 300 से अधिक स्टार्टअप काम कर रहे हैं। देखते ही देखते हमारे स्टार्टअप स्काईरूट एरोस्पेस ने अपना रॉकेट विक्रम एस तैयार कर लिया है। एक और स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड इंजन बनाकर सबको चौंका दिया है। ये सब स्टार्टअप की कमाल है। भारत के स्पेस स्टार्टअप अब लगातार कमाल करके दिखा रहे हैं। साथियों, मैं अब आपसे एक सवाल करता हूं। आप कल्पना करिए कि अगर ड्रोन उड़ाने पर 24 घंटे अनेकों तरह की पाबंदी लगी रहती तो क्या होता? ये थी। पहले हमारे यहां ड्रोन उड़ाना या बनाना दोनों कानूनों के जाल में फंसा हुआ था। लाइसेंस लेना पहाड़ चढ़ने जैसा काम था और इसे केवल सुरक्षा के नजरिए से ही देखा जाता था। हमने नए नियम बनाए, नियम आसान किए। इसके कारण आज हमारे यहां कितने ही युवाओं को ड्रोन से जुड़े सेक्टर में आगे बढ़ने का मौका मिला है। युद्ध क्षेत्र में मेड इन इंडिया ड्रोन देश के दुश्मनों को धूल चटा रहे हैं और कृषि क्षेत्र में हमारी नमो ड्रोन दीदियां खेती में ड्रोन टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रही है। साथियों, डिफेंस सेक्टर भी पहले सरकारी कंपनियों पर ही निर्भर था। हमारी सरकार ने इसको भी बदला। भारत के डिफेंस इकोसिस्टम में स्टार्टअप के लिए दरवाजे खोले। इसका बहुत बड़ा फायदा हमारे युवाओं को ही मिला है। आज भारत में 1000 से अधिक डिफेंस स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं। आज एक युवा ड्रोन बना रहा है तो दूसरा युवा एंटी ड्रोन सिस्टम बना रहा है। कोई एआई कैमरा बना रहा है, कोई रोबोटिक्स पर काम कर रहा है। साथियों, डिजिटल इंडिया ने भी भारत में क्रिएटर्स की एक नई कम्युनिटी खड़ी कर दी है। भारत आज ऑरेंज इकोनॉमी यानी कल्चर, कंटेंट और क्रिएटिविटी का अभूतपूर्व विकास होते देख रहा है। भारत
मीडिया, फिल्म, गेमिंग, म्यूजिक, डिजिटल टैलेंट, वीआर, एक्सआर जैसे क्षेत्रों में एक बड़ा ग्लोबल सेंटर बन रहा है। अब यहां पर एक प्रेजेंटेशन में हमारे कल्चर को एक्सपोर्ट करने की बात चल आई है। मैं तो आप नौजवानों से आग्रह करता हूं, हमारी जो कहानियां हैं, कहानी किस्से हैं, रामायण है, महाभारत है, बहुत कुछ है, क्या हम उसमें गेमिंग की दुनिया में ले जा सकते हैं इन चीजों को? पूरी दुनिया में गेमिंग एक बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है। हम अपनी माइथोलॉजी की कथाओं को लेकर के भी गेमिंग की दुनिया में नए नए खेल ले जा सकते हैं। हमारे हनुमान जी पूरी दुनिया की गेमिंग को चला सकते हैं। हमारा कल्चर भी एक्सपोर्ट हो जाएगा, आधुनिक रूप में हो जाएगा, टेक्नोलॉजी का उपयोग होगा। और आजकल भी मैं देख रहा हूं हमारे देश के कई स्टार्टअप हैं जो गेमिंग की दुनिया में बहुत बढ़िया भारत की बातें कह रहे हैं, और बच्चों को भी खेलते खेलते भारत को समझना सरल हो जाता है। साथियों, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट यानी वेव्स युवा क्रिएटर्स के लिए एक बहुत बड़ा लॉन्च पैड बन गई है। यानी सेक्टर कोई भी हो, आपके लिए आज भारत में अनंत संभावनाओं के द्वार खुल रहे हैं। इसलिए मेरा आज यहां इस आयोजन से जुड़े सभी युवाओं से, देश के युवाओं से आह्वान है, आप अपने आइडिया के साथ आगे बढ़िए, रिस्क लेने से पीछे मत हटिए। सरकार आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। साथियों, बीते दशक में बदलाव का, रिफॉर्म्स का जो सिलसिला हमने शुरू किया, वो अब रिफॉर्म एक्सप्रेस बन चुका है। और इन रिफॉर्म्स के केंद्र में आप है, हमारी युवा शक्ति है। जीएसटी में हुए नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म से युवाओं और एंटरप्रेन्योर्स के लिए प्रोसेस और आसान हो गई है। अब 12 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स जीरो हो गया है। इसे नई नौकरी वालों या नया बिजनेस शुरू करने वाले नौजवानों को उनके पास बहुत ज्यादा बचत होने की संभावना बढ़ गई है। साथियों, आप सभी जानते हैं आज बिजली सिर्फ रोशनी का माध्यम नहीं है। आज एआई, डेटा सेंटर्स, सेमीकंडक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, ऐसे हर इकोसिस्टम के लिए ज्यादा बिजली की जरूरत है। इसलिए आज भारत एश्योर्ड एनर्जी सुनिश्चित कर रहा है। सिविल न्यूक्लियर एनर्जी से जुड़ा रिफॉर्म यानी शांति एक्ट इसी लक्ष्य के साथ किया गया है। इससे न्यूक्लियर सेक्टर में तो हजारों नए जॉब्स पैदा होंगे ही, बाकी सेक्टर्स पर भी इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होने वाला है। साथियों, दुनिया के अलग अलग देशों की अपनी जरूरतें हैं, अपनी डिमांड है। वहां वर्कफोर्स लगातार घट रही है। हमारा प्रयास है कि भारत के युवा दुनिया भर में बन रहे अवसरों के लिए तैयार हो। इसलिए स्किल डेवलपमेंट से जुड़े सेक्टर्स में भी लगातार रिफॉर्म किया जाना चाहिए, और हम कर रहे हैं। नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बाद अब हायर एजुकेशन से जुड़े रेगुलेशन को रिफॉर्म किया जा रहा है। विदेशी यूनिवर्सिटीज भी अब भारत में अपने कैंपस खोल रही हैं। हाल में ही हजारों करोड़ रुपए के निवेश के साथ पीएम सेतु प्रोग्राम शुरू किया गया है। इससे हमारे हजारों आईटीआई अपग्रेड किए जाएंगे ताकि युवाओं को इंडस्ट्री की वर्तमान और भविष्य की जरूरतों के हिसाब से ट्रेन किया जा सके। बीते समय में दुनिया के अलग अलग देशों के साथ भारत ने ट्रेड डील्स की है। ये भी भारत के युवाओं के लिए नए नए अवसर लेकर आ रही है। साथियों, कोई भी देश बिना आत्मविश्वास के आत्मनिर्भर नहीं हो सकता, विकसित नहीं हो सकता। और इसलिए अपने सामर्थ्य, अपनी विरासत, अपने साजो सामान पर गौरव का अभाव हमें खलता है। हमारे पास उसके प्रति एक कमिटमेंट चाहिए, गौरव का भाव होना चाहिए, और हमें बड़ी मजबूती के साथ, गौरव के साथ मजबूत कदमों से आगे बढ़ना चाहिए।
आपने ब्रिटिश राजनेता मैकाले के बारे में जरूर पढ़ा होगा। उसने गुलामी के कालखंड में शिक्षा तंत्र के माध्यम से भारतीयों की ऐसी पीढ़ी बनाने के लिए काम किया जो मानसिक रूप से गुलाम हो। इससे भारत में स्वदेशी के प्रति, अपनी परंपराओं के प्रति, अपने प्रोडक्ट्स, अपने सामर्थ्य के प्रति हीन भावना पनपी। सिर्फ स्वदेशी होना, इंपोर्टेड होना ही, विदेशी होना और इंपोर्टेड होना, इसी को श्रेष्ठता की गारंटी मान लिया। अब ये कोई गले उतरने वाली चीज है क्या? हमें मिलकर गुलामी की इस मानसिकता को खत्म करना है। 10 साल बाद मैकाले के उस दुस्साहस को 200 वर्ष पूरे हो रहे हैं और ये पीढ़ी की जिम्मेवारी है कि 200 साल पहले का जो पाप है ना, वो धोने के लिए अभी 10 साल बचे हैं हमारे पास। और ये युवा पीढ़ी धो करके रहेगी, मुझे पूरा भरोसा है। और इसलिए देश के हर युवा को संकल्प लेकर इस मानसिकता से देश को बाहर निकालना है। साथियों, हमारे यहां शास्त्रों में कहा गया है और यहां पर स्टार्टअप, यहां जो प्रेजेंटेशन हुआ उसमें भी उसका उल्लेख किया गया, आनो भद्राः कर्तवो यन्तु विश्वतः, यानी हमारे लिए सभी दिशाओं से कल्याणकारी और शुभ और श्रेष्ठ विचार आने दें। आपको भी दुनिया के हर बेस्ट प्रैक्टिस से सीखना है, लेकिन अपनी विरासत, अपने आइडियाज को कमतर आंकने की प्रवृत्ति को कभी हावी नहीं होने देना है। स्वामी विवेकानंद जी का जीवन हमें यही तो सिखाता है। उन्होंने दुनिया भर में भ्रमण किया, वहां की अच्छी बातों की प्रशंसा की, लेकिन उन्होंने भारत की विरासत को लेकर फैलाए गए भ्रम को तोड़ने के लिए निरंतर प्रयास की, कठोरता उन्होंने घाव की उस पर। उन्होंने विचारों को सिर्फ इसलिए नहीं स्वीकार किया क्योंकि वे पॉपुलर थे, बल्कि उन्होंने कुरीतियों को चैलेंज किया। स्वामी विवेकानंद जी एक बेहतर भारत बनाना चाहते थे। उसी स्पिरिट के साथ आज आप युवा शक्ति को आगे बढ़ना है और यहां अपनी फिटनेस का भी ध्यान रखना है, खेलना है, खिलखिलाना है। मुझे आप सभी पर अटूट भरोसा है। आपका सामर्थ्य, आपकी ऊर्जा पर मेरा विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को एक बार फिर से युवा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं एक और सुझाव देना चाहता हूं। ये जो हमारा डायलॉग का कार्यक्रम चल रहा है, क्या आप कभी योजना करके अपने स्टेट में स्टेट को विकसित बनाने के लिए डायलॉग, ये कार्यक्रम शुरू करें और थोड़े समय के बाद हम डिस्ट्रिक्ट को विकसित बनाने के लिए भी डायलॉग शुरू करें, इस दिशा में जाएंगे। लेकिन हर राज्य में एक कार्यक्रम राज्य के नौजवान मिलकर के, ताकि थिंक टैंक जिसको कहा गया, ये थिंक वेव बन जाएगा, ये दिशा में हम करें। मेरी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।